Hello students, welcome to Acmic Academy. I am your teacher for this lecture and welcome to revision through MCQ discussion series. Alright, now we'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Today we will be discussing questions based on the chapter relations and functions, and particularly we will be dealing with those questions on functions which involve functional equations, alright, or we have to find the number of solutions of a functional equation graphically. Alright, so let's begin beta, but before we begin, don't forget to subscribe to our channel so that you keep on getting videos on upcoming lectures, all right, and it will help you to revise your chapters beta thoroughly. All right, so let us begin now. Look at the first question on your screen. All right, so as you can see, the first question is from JEE Mains 2020. Is it all right? So this is from JEE Mains 2020. Now let us read what is the question. You are given that suppose the function f from R to R satisfies this functional equation. Okay, so this is a functional equation. F of x plus y is fx into fy for all xy belonging to R. We are given f of 1 is 3. That means value of the function at 1 is 3. You have to find value of n if we are given that sigma fi I varying from 1 to n is 363. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए what we have to do, first of all you have to find the function. कौन सा फंक्शन है जो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो आप देखो, लेट मी टेक द फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल. तो फंक्शन जो गिवन है बेटा वो है f ऑफ x इज इक्वल टू, सॉरी, फंक्शनल इक्वेशन पहले हम लिखते हैं. तो फंक्शनल इक्वेशन गिवन टू अस इज f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू fy. इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास बेटा फंक्शनल इक्वेशन है. अब इसमें दिया है कि this is true for all xy belonging to R, and we are also given that value of the function at 1 is equal to 3. This is given to us. अब सबसे पहले फंक्शन निकालेंगे कैसे? तो हमें ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि इस फंक्शन को सेटिस्फाई करती हुई कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स जैसे फंक्शनल इक्वेशंस के होते हैं, उनमें एक रिजल्ट पहला आप ये ध्यान में रखोगे कि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ बेटा जो फंक्शन होता है that is fx is equal to a raised par x. ठीक है, ये हमारा फंक्शन होता है. अब इसमें जैसे हमें a चाहिए, तो you are given that f of 1 is 3. तो let us put x equal to 1 in this. We will be getting f of 1 is equal to a raised par 1, that is a. Because we are given that f of 1 is 3, तो this implies a की वैल्यू कितनी आ गई? 3. तो देखो यहाँ पे पुट कर दो a raised par x में. That will give you the function that was to be obtained. तो fx हमारे पास फंक्शन आ गया 3 raised par x. Is it okay? अब आप कहोगे कि a raised par x क्यों लिया है बेटा? देखो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. आप ऑब्जर्व करो, जैसे अगर हम f of x plus y लेते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये क्या बनती? a की पावर x plus y. You know that अगर पावर में सम होता है तो हम ऐसे स्प्लिट करके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं. तो a रेस पर x आपका क्या हो गया? f of x, and a रेस पर y is f of y. So we are getting f of x plus y is fx into fy. तो ये वाला फंक्शन जो है हमारा, ये इस गिवन फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो फंक्शन हमारे पास 3 रेस पर x आ गया, बिकॉज f of 1 was 3, तो हमने a निकाल लिया. अब देखो आगे आपको क्या दिया हुआ है. We are given that sigma I varying from 1 to n f of I, this is given to be equal to 363. ये आपको गिवन है और हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस बिगिन बेटा. तो स्टार्ट करते हैं, इसको ऑब्जर्व करो. अब f of x है 3 रेस पर x, तो इसका मतलब ये हो गया सिग्मा 3 रेस पर I varying from 1 to n, this is equal to 363. Isn't it? अगर f of x 3 रेस पर x है बेटा, तो f of i कितना होगा? 3 रेस पर i होगा. अब i को वेरी करते हैं, and you know that sigma means you keep on adding. So if you take summation, we get 3 रेस पर 1 plus 3 रेस पर 2 plus 3 रेस पर 3 up till we get 3 रेस पर n, that is equal to 363 बेटा.
Is it okay? Just a moment. So this will be 363. अब आपको नजर आ रहा होगा बेटा लेफ्ट साइड पे हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. इसमें देखो फर्स्ट टर्म हमारी 3 है एंड कॉमन रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू 3. तो सम अप टू एन टर्म्स का जो जीपी का फॉर्मूला है, लेट अस अप्लाई दैट. सो द फॉर्मूला इज a into r raised power n minus 1 upon r minus 1. दिस इज इक्वल टू 363. तो a की वैल्यू भी 3 है and r is also 3. Let us put. So we have 3 into 3 raised power n minus 1 divided by 3 minus 1 is equal to 363 बेटा. तो ये हो जाएगा. अब आगे सॉल्व कर लेते हैं. आप नोटिस करो ये हो गया 3, दोनों तरफ देखो कैंसिल कर दो. ये 3 कैंसिल करो, ये करोगे ये कितना आ जाएगा 121. सो वी आर गेटिंग 3 raised power n minus 1 is equal to 2 times, this will be equal to 2 times 121. तो we get 3 raised power n is equal to कितना 243 बेटा. ठीक है ना, वो 242 आया, 1 ऐड करो, we get 243. You know that it is 3 raised power 5. So compare करो, तो comparing we get answer as n is equal to 5. ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 5. चेक करते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शन है. आई थिंक इसमें ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ऑप्शंस नहीं दिए हैं, तो हमारा आंसर 5 आया है. तो करेक्ट आंसर विल बी 5. ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड में यू नो दैट ऑप्शंस आर नॉट गिवन. आंसर आपका कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, इवन डेसिमल में भी हो सकती है. ऑलराइट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल बी एन इंटीजर. राइट, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस फंक्शनल इक्वेशन. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इट इज फ्रॉम जेईई मेंस 2016. क्या क्वेश्चन है पढ़ते हैं. क्वेश्चन हमारे पास ये है, देखो कि अगर f of x प्लस 2 टाइम्स f of 1 by x इज इक्वल टू 3x. जस्ट अ मोमेंट बेटा, ये आपको क्वेश्चन अब क्लियरली दिख रहा होगा. यस, सो f of x plus 2 times f of x is equal to 3x. Obviously x is not equal to 0 because x is in denominator. तो अगर s set है all those x belonging to real numbers for which f of x is equal to f of minus x, तो आपने बताना है set s will contain how many elements. So let's see how do we solve this kind of a question. Now the functional equation given to us is f of x plus 2 times f of 1 upon x. This is equal to 3x and x is not equal to 0. अब ध्यान से सुनना, कभी भी आपको इस टाइप की देखो अगर इक्वेशन दी है और यहां से पहले हमने f of x निकालना है, तो हमेशा स्टेप क्या होता है कि ऊपर वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर दो x को किससे, 1 upon x से. तो वी विल रिप्लेस x by 1 by x. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. इसको कह देते हैं 1, तो हमारे पास एक दूसरी इक्वेशन आ गई. We get f of 1 upon x plus 2 times f of. अब देखो x को 1 by x से रिप्लेस किया है, तो 1 upon 1 by x will be x. और राइट साइड हो जाएगा 3 into 1 by x, that means 3 by x. Now what we can do is यहां से f of 1 by x निकाल लो. This is equal to 3 upon x and minus 2 times f of x. ये f of 1 by x की वैल्यू we can put in 1. So that we get equation only in terms of f of x. f of 1 by x eliminate हो जाएगा, तो f of x आपको मिल जाएगा. तो ये f of 1 by x हम यहाँ put कर देंगे. ठीक है, we will put the value over here. तो let us do that. Let's see what are we getting. We are getting f of x plus 2 times we have 3 upon x. All right, यहाँ पे देखो, और minus 2 times f of x. This is equal to how much, 3x. तो ये हमारे पास आ गया 3x. Got it? अब हम यहां से सॉल्व करके बेटा we are going to find f of x. Let's solve it now. So we get f of x plus 6 upon x minus 4 times f of x is equal to 3x. Is it all right? तो यहां पे हमारे पास है 3x. So we get f of x और minus 4 मतलब minus 3 times f of x. This is equal to 3x minus 6 upon x. Got it? Divide by minus 3. तो यहाँ पे we can divide by minus 3. ताकि f of x निकाल सके. So what are we getting?
वी आर गेटिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस 2 अपॉन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हमारा फंक्शन ही आ गया। तो पहला स्टेप था कि फंक्शन निकालना है। ऑब्वियसली इसमें बेटा x क्या है, नॉन जीरो है। अब देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या था कि अगर सेट S है जिसमें हमारे पास वो सारे एफ एक्स हैं जिनमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ऐसे सेट S में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो लेट अस नाउ सॉल्व इट फर्दर। वी आर गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। तो वी आर गिवन दिस कंडीशन। इज इट ऑल राइट? ये तो ये हमें क्या है, गिवन है। मतलब सेट S में वो सारे एलिमेंट्स हैं x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो f ऑफ x है माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स। तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जहां भी x है रिप्लेस इट बाय माइनस एक्स, वी गेट x माइनस 2 अपॉन एक्स। इज इट ओके? तो इट विल बी x माइनस 2 अपॉन एक्स। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखो, let us solve it now. What are we getting? Observe here. We are getting minus 2x is equal to minus 4 upon x. Minus 2 cancel करो तो we get x is equal to 2 upon x. That means we get x square is equal to 2. तो स्क्वायर रूट ले लो, x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2। और देखो दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो S सेट में हमारे पास दो एलिमेंट्स आ गए बेटा। एक एलिमेंट है अंडर रूट ऑफ 2 and second element is minus under root of 2. That means S contain how many elements beta? 2 elements. All right. Set S में हमारे पास 2 elements हैं। तो वही हमारा आंसर है। तो let us check which option is correct. All right. So we are getting 2 elements. Now look here. You can see the question completely. तो आपको पूछा था कि S क्या होगा, empty set wrong है, 1 element wrong है, contains exactly 2 elements सही है। That means correct option is C. ओके, तो आपको ये पता चल गया बेटा कि इस टाइप की अगर हमें कोई इक्वेशन दी है, फंक्शनल इक्वेशन, तो उसमें f ऑफ x निकालते कैसे हैं, रिप्लेस x बाय 1 बाय x। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। अब देखो थर्ड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे। लेट्स सी व्हाट इज गिवन। वी आर गिवन दैट a b c आर रियल नंबर्स। f ऑफ x आपको एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c सच दैट a प्लस b प्लस c 3 है। फिर देखो आपको ये फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है। कैन यू सी, दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन विच इज गिवन टू अस, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। आपको बताना है कि सिग्मा एफ एन वेयर एन वेरीज फ्रॉम 1 to 10 क्या होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2017। राइट, सो लेट्स सी हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो आप ऑब्जर्व करो, एक तो हमें ये गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, ये गिवन है। फिर आपको ये भी गिवन है एक कंडीशन कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी है, 3। ऑलराइट, सो वी आर गिवन a प्लस b प्लस c इज 3। फिर हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, कौन सी देखो, वी आर गिवन दैट f ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू f ऑफ x plus f of y and plus we have x into y, and this is true for all x y belonging to R। तो पहले हम फंक्शन निकालते हैं, फिर सिग्मा f of n निकाल ही लेंगे। अब देखो फंक्शन निकलेगा कैसे। एक काम करते हैं, जैसे आप इसको कह दो 1, let us call this as 2। Is it okay? तो पहले काम करते हैं कि put x equal to 0 in 1, x को 0 1 में पुट करो। Let us see what do we get. We are getting, if you put x as 0, तो देखो जहां भी x है वो 0 आ गया, तो f of 0 कितना आ गया, आप ऑब्जर्व करो, it is equal to c। तो f of 0 हमने 1 से निकाला, किसके इक्वल आ रहा है, c के। अब एक काम करते हैं, पुट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, दोनों को 0 पुट कर दो, किसमें, 2 में बेटा। तो लेट अस पुट इट इन 2, ठीक है, 2 में हम पुट करते हैं। लेट अस सी व्हाट डू वी गेट। x और y अगर दोनों को यहां पे हम पुट कर रहे हैं 0, हमारे पास आ गया, ऑब्जर्व करो कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 और प्लस कितना, 0 बेटा। ये कंडीशन हमारे पास आ गई।
तो एक एफ ऑफ जीरो आपका कैंसल हो गया, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस जीरो, मतलब कितना, जीरो। अब इसको यूज करो कि एफ ऑफ जीरो सी के इक्वल था, तो वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ सी टू बी इक्वल टू जीरो। तो हमें सी की वैल्यू बेटा जीरो मिल गई है। इज इट ऑल राइट? अब देखो हमें क्या पता है, वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी 3 है और हमें फंक्शन दिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। नाउ व्हाट वी डू इज, इसी फंक्शनल इक्वेशन में, ठीक है, ये वाली फंक्शनल इक्वेशन में हम एक काम करते हैं, लेट अस पुट y एज माइनस एक्स। देखो उसका क्या फायदा होगा। अब हम ये पुट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू पुट y इक्वल टू, ये थोड़ा सा ना बेटा हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या वर्क कर रहा है। इज इट ऑल राइट? तो आई एम गोइंग टू पुट y इक्वल टू माइनस एक्स इन टू का मतलब जो हमें फंक्शनल इक्वेशन बेटा गिवन है, देखो ये वाली फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है ना, ये वाली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स इंटू वाई। लेट अस पुट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, जीरो, एफ ऑफ जीरो, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ जीरो कितना है, जीरो है, दैट इज वाई वी आर पुटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो लेट मी डू दैट। सो वी आर गेटिंग नाउ दिस विल बी इक्वल टू, जस्ट अ मोमेंट, ये देखो, तो हमारे पास ये आ गया कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कितना, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स और x इंटू वाई बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो था, एफ ऑफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो कि आपको गिवन है। ऑलराइट, तो अगर एफ ऑफ माइनस एक्स चाहिए बेटा, तो यहीं पे आप x को क्या पुट कर दो, माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, वी विल हैव a एक्स स्क्वायर minus bx plus c and then we have minus x square. Let's simplify. You can see bx minus bx will cancel and we also know that value of c is 0. तो 0 is equal to, ये आ गया 2ax square minus x square। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला जो c है आपका, ये c और ये वाला c दोनों किसके इक्वल हैं, 0 के। That means we are getting that एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो 0 विल बी इक्वल टू 2a माइनस 1, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिलती है कितनी, 1/2। इज इट ऑल राइट? तो वैल्यू ऑफ a विल बी 1/2। तो c की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0, a की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें b निकालना है, फॉर दैट वी विल यूज दिस कंडीशन जो अभी तक हमने यूज नहीं करी कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है बेटा। तो यहां पुट कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग 1/2 plus b plus 0 is equal to 3. This implies value of b is coming out to be 3 minus 1/2. That will be equal to how much? This will be 5/2. Sorry. तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2. तो b भी हमारे पास आ गया बेटा। अब देखो हम कंप्लीट फंक्शन लिख सकते हैं। हमारे पास याद है ना क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया था कौन सा, ये देखो, we were given f of x is equal to ax square plus bx plus c। तो abc पुट कर दो, f of x फंक्शन आ गया हमारे पास 1/2x square and plus we have how much, look here, plus we have 5/2 into x। तो दिस इज द, क्योंकि c तो 0 है, तो ये फंक्शन हमारे पास आया है बेटा, दिस इज द फंक्शन। अब देख लेते हैं हमें निकालना क्या है। Now let us see what is to be obtained. As you can see in the equation, we need to obtain sigma n varying from 1 to 10 f of n. तो let us obtain that. Sigma fn, n वेरी कर रहा है 1 से लेकर 10 तक, तो इसको निकालते हैं। Sigma fn, n वेरिंग फ्रॉम 1 to 10, तो f of n देखो आपका ये फंक्शन हो जाएगा, यहां से निकाल लो, इट इज सिग्मा n वेरिंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, हमारे पास देखो क्या फंक्शन है, f of n विल बी 1/2n स्क्वायर एंड प्लस 5/2n, ये आ जाएगा। ठीक है, इसको करते हैं आगे सिंप्लीफाई, तो वी गेट सिग्मा, ये 1/2 आप समेशन के बाहर ले सकते हो, कांस्टेंट है, हर टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट मे बी टेकन कॉमन।
तो half of sigma n varying from 1 to 10 n square plus we have 5 by 2 times sigma n and n is also varying. Just a moment. तो यहाँ पे बेटा ये हो गया सिग्मा n, n भी वेरी कर रहा है अगेन 1 से लेकर 10 तक. अब बस फॉर्मूले अप्लाई कर दो. सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है देखो, इट वॉज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 and divided by 6. all right, और 5 by 2 times sigma n जिसका फॉर्मूला है n into n plus 1 by 2. अब देखो हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं. लेट मी टेक कॉमन. Let's see what is common. You can see in the numerator n into n plus 1 is common. In the denominator we have 4 common. So we are left with, पहली टर्म में देखो क्या बच रहा है बेटा, n into n plus 1 by 4 कॉमन लिया है ना, तो न्यूमिनेटर में क्या बच रहा है 2n plus 1 और डिनोमिनेटर में 3. अगली टर्म लो, n into n plus 1 by 4 तो कॉमन ले चुके, तो हमारे पास बचा कितना 5. अब देखो n 1 से 10 तक वेरी कर रहा था, तो n की वैल्यू पुट कर देते हैं 10 टर्म्स तक का सम चाहिए था हमें. तो ये हो जाएगा आपका 10 into 11 by 4 multiplied by this will be 21 by 3 7 plus 5 will be 12. तो ये कैंसिल कर दो 3. So that means we are getting answer to be, look here, कितना आ गया 330. Is it okay? So this is the required answer. तो sigma fn n varying from 1 to 10 is 330 because the function was this 1 by 2x square plus 5 by 2x. So how did we obtain? By finding the values of a, b and c. So let us check which option is correct. So our sum is coming out to be 330. Alright. So you can see beta easily that 330 means a option. तो यहाँ पे हम बोल देंगे correct option is A. Is it okay? That is correct. So this was question number 3. Let's move on to beta question number 4 now. तो fourth question देखो हमारा क्या है. Look at the screen. This question as you can see is from AEEE 2005. पढ़ते हैं question. Question ये है, a real valued function f satisfies this functional equation where a is given to be a constant and f of 0 is given to be 1. तो आपको बताना है किसकी वैल्यू, f of 2a minus x की. तो let us solve this question now. ठीक है, तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. तो let me write first of all what is given. पहले तो फंक्शनल इक्वेशन लिख लेते हैं. We are given that f of x minus y is equal to fx into fy minus f of a minus x into f of a plus y, and this is true for all xy. all right. और आपको गिवन है कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है. हमें ये भी गिवन है कि f of 0 is equal to 1. all right, and we have to find f of 2a minus x. अब देखो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्योंकि f of 0 1 दिया है, तो हम एक काम करते हैं, इसको 1 कह दो. तो 1 में पुट कर दो बेटा x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0. दोनों को 0 पुट करो so that we can use this condition. Let's see what do we get. We are getting f of 0 is equal to, this is f0 into f0 minus we have f of a into f of a. Is it all right? अब यूज कर लेते हैं कि f of 0 1 है, तो ये कंडीशन यहां पे यूज करो. 1 is equal to 1 का स्क्वायर इज 1 और माइनस f of a का स्क्वायर बेटा ये आ जाएगा. तो यहां से 1 1 कैंसल हो गया. We are getting value of the function at a to be equal to 0. all right. तो f of 0 1 दिया था. Using it we have obtained f of a equal to 0. So now we need to obtain what? F of 2a minus x. So let's see how we can obtain f of 2a minus x. We can write f of 2a minus x as a minus x minus a. लिख सकते हो ऐसे. अब देखो माइनस क्यों लिखा बीच में? बिकॉज वी वॉन्ट टू यूज दिस फंक्शनल इक्वेशन. इसमें देखो लेफ्ट साइड पे x माइनस वाई है, तो एक तरह से x रिप्लेस होगा बेटा a से, एंड इन प्लेस ऑफ y वी हैव x माइनस a. तो ये हम रिप्लेसमेंट करेंगे और इसको पुट करेंगे किसमें? 1 में बेटा.
So we are going to put this in 1. So let us do that. All right. So this will be equal to, this implies f of 2a minus x will be equal to. तो यहां पे देखो अब अप्लाई करने जा रहे हैं. ऑब्जर्व करो, x की जगह हमारा a है राइट साइड पे. तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. f ऑफ a, फिर f ऑफ y. y कितना है? x माइनस a. इज इट ओके? आगे चलो, माइनस f ऑफ a माइनस x है. तो ये हो गया f ऑफ a माइनस a मतलब 0, क्योंकि x को देखो a से रिप्लेस करना है. फिर है f ऑफ a प्लस y. तो a प्लस y का मतलब है a प्लस x माइनस a, दैट इज f ऑफ x. ऑलराइट, तो दिस कंडीशन वी आर गेटिंग. अब हम इसमें दो रिजल्ट्स यूज करेंगे. एक तो ये यूज करेंगे बेटा जो हमें पता है कि f ऑफ 0 है 1, और एक हमने जो निकाला है कि f ऑफ a इज इक्वल टू 0. ये दोनों यहां पे यूज कर दो. तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू, क्योंकि देखो f ऑफ a 0 है तो पहली टर्म आपकी हो गई 0. फिर माइनस, यहां पे f ऑफ 0 इज 1, तो वी गेट माइनस ऑफ fx. बस आंसर आ गया. दैट मीन्स वी आर गेटिंग f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू, देखो कितना आ गया, f ऑफ 2a माइनस x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस ऑफ fx. दैट इज द आंसर. चेक कर लेते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, सो लेट अस चेक नाउ. Minus of fx. All right, so this is the complete question as you can see beta on your screen. So you can observe that D option में है minus of fx. That means here correct option will be D. Is it okay? तो D option हमारी correct आ गई. So this was question number 4 and it was from AEEE 2005. Let's move on to the next question now. अगले question पे move करते हैं बेटा. Look at question number 5. देखो क्या given है. We are given that fx is 4 raised par x upon 4 raised par x plus 2. तो आपको ये सीरीज का सम चाहिए. ऑलराइट, लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन. अब देखो फंक्शन हमें ये गिवन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4 raised par x डिवाइडेड बाय 4 raised par x plus 2. इज इट ऑलराइट? ये अब पता है इसमें क्या डायरेक्ट रिजल्ट यूज होता है. हम इसमें ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे. लुक केयरफुली कि अगर आपके पास कोई फंक्शन इस टाइप का होता है a रेज पार x अपॉन a रेज पार x प्लस अंडर रूट ऑफ a, तो ये फंक्शन हमेशा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x विल बी इक्वल टू 1. इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई दिस. तो दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज. आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो. राइट, अब आप नोटिस करो यहां पे a की जगह एक तरह से क्या है बेटा, 4 है. Isn't it? तो इसमें अगर a को 4 ले लें तो 4 रेज पार x अपॉन 4 रेज पार x और अंडर रूट ऑफ 4 is 2. That means this function, this particular function is of the type a रेज पार x अपॉन a रेज पार x प्लस अंडर रूट ऑफ a. तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. तो that means we can say we have f of x plus f of 1 minus x will be equal to 1. Call it as 1. तो ये हमारे पास एक फंक्शनल इक्वेशन आ गई जो ये फंक्शन सेटिस्फाई करता है. अब देखो हमें जिस सीरीज का सम चाहिए उसमें सबसे पहली टर्म है f ऑफ 1 अपॉन 1997. तो व्हाट वी कैन डू इज, इसमें सबसे पहले हम x को पुट करते हैं 1 अपॉन 1997. लेट्स सी व्हाट डू वी गेट. वी गेट f ऑफ 1 अपॉन 1997 प्लस 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 minus this will be 1996 upon 1997. This sum will be equal to 1. Similarly, let us put x as 2 upon 1997. जो सीरीज में सेकेंड टर्म में आपको चाहिए था f of 2 upon 1997. तो इसको पुट करते हैं तो we are getting f of 2 upon 1997 plus. अब देखो इसको भी 1 में ही पुट कर रहे हैं ना इसमें, तो 1 minus 2 upon 1997 will give you 1995 divided by 1997. This sum will also come out to be 1. अब देखो ऐसे ही चलते जाओ. जैसे आप देखो नोटिस करो आपके पास सम 1 से लेकर 1996 तक का चाहिए था. तो 1996 का अगर आप हाफ कर लो कितना आ जाएगा, 998.
तो हम एक काम करते हैं, इस तरह से चलते चलते आखिरी में x को पुट करते हैं 998 upon 1997 and let us see what are we getting. We will get f of 998 divided by 1997 plus 1 में से माइनस करोगे इसको तो कितना आ जाएगा, देखो we will get 999 divided by 1997, this will be equal to 1. तो इसका मतलब ये 1 हो गया. अब देखो ये आपके पास जो इक्वेशंस आई हैं बेटा, इन सबको हम कर लेते हैं ऐड. लेट अस ऐड ऑल दीज. अगर आप ऐड कर रहे हो तो एक तरह से f of 1997. अब देखो मैं पहले इस ऑर्डर में टर्म्स को लिख रही हूं, ठीक है, लाइक दिस. कैन यू सी, दिस प्लस दिस वर्टिकली ऐड कर रही हूं. तो वी हैव प्लस f of 2 upon 1997. ऑल राइट, ये देखो ये हो गया. एंड सिमिलरली कहां तक जा रहे हैं ऑब्जर्व करो, वी आर गोइंग अप टू आखिरी टर्म है हमारे पास 998 अपॉन 1997. फिर अब इसको रिवर्स ले लो. अब ये टर्म्स ऐड कर लो बेटा रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है. जैसे हमने इनको ऐड कर लिया वर्टिकली, इनको भी वर्टिकली ऐड करो और रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं. तो अगली टर्म हमारे पास ये आ गई, f of we have 999 upon 1997 and so on, ठीक है. ये देखो फिर आपके पास आ रहा है f of 1995 डिवाइडेड बाय 997 और आखिरी टर्म हमारे पास आ गई f of 1996. जस्ट अ मोमेंट. तो इट इज 1996 डिवाइडेड बाय 1997. ये सम देखो कितना हो जाएगा. अगर हम ये सारा सम निकाल रहे हैं तो दिस सम विल बी 1 प्लस 1 प्लस 1. अब देखो कितनी इक्वेशंस थी, x को 1 से लेकर 998 तक पुट किया था तो 998 इक्वेशंस थी. तो 1 प्लस 1 विल गिव यू 998. इज इट ओके? और यही तो सीरीज का सम था जो आपको चाहिए था. देखो f of 1 upon 1997 प्लस f of 2 upon 1997 से लेकर यहां तक. तो दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी 998. तो देखते हैं किसमें है. तो आंसर इज 1998. तो आप देखो ये आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे, यू कैन सी दैट बी ऑप्शन में है 998. तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा कि fx इज a raised par x upon a raised par x plus root a. तो f of x plus f of 1 minus x हमेशा कितना होता है, 1. ओके, अगले पे चलते हैं बेटा. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स सी व्हाट इज गिवन. We are given that gx is a polynomial satisfying this functional equation g of x plus into g of y is equal to g of x plus g of y plus g of x into y or minus 2, and this is true for all real x and y. Is it okay? और आपको ये भी दिया है कि 2 पे g की वैल्यू 5 है तो आपने बताना है 3 पे इसकी वैल्यू क्या होगी. Is it okay? Let us see how to solve this question. आप देखो सबसे पहले तो हम फंक्शनल इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है बेटा. तो दैट वी आर गोइंग टू राइट. सो लुक हियर. तो फंक्शनल इक्वेशन हमारी ये है, ऑब्जर्व करो. वी आर गिवन दैट g ऑफ x इंटू जी ऑफ y इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस g ऑफ y एंड प्लस g ऑफ x इंटू y एंड माइनस 2. And this is true for all x and y. अब क्योंकि हमें g of 2 की वैल्यू दी हुई है 5, is it all right? ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है. तो हम यहाँ पे एक काम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा. फर्स्टली वी आर गोइंग टू पुट हेयर x as 1 and y as 2. x को 1 ले लो, y को 2 ले लो. क्यों? क्योंकि g of 2 5 गिवन है. आप उल्टा भी कर सकते हो, x को 2 ले लो, y को 1, क्योंकि हमें g of 2 यूज करना है. तो लेट्स सी व्हाट आर वी गेटिंग. वी आर गेटिंग g of 1 into g of 2 is equal to g of 1 plus g of 2 और x into y कितना हो गया, g of 2 and this is minus 2. तो हम वैल्यू पुट करते हैं g of 2 की. जहां भी g of 2 है उसकी वैल्यू क्या पुट हो जाएगी बेटा, 5. तो वी आर गेटिंग 5 times g of 1
is equal to g of 1. 5 plus 5, 10. 10 minus 2 will be equal to 8. That means we are getting 4 times g of 1 is 8. That gives you value of g of 1 बेटा. किसकी वैल्यू? g of 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई. That is equal to 2. ये आ गया हमारे पास. ऑलराइट, तो अब हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं बेटा. एक तो g of 2 की 5 उन्होंने ऑलरेडी गिवन थी और g of 1 हमने 2 निकाल लिया. अब देखो आपको g of 3 निकालना है. अब हम एक काम करते हैं, जैसे आप नोटिस करो ये वाली जो हमें फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, वी आर गिवन दिस फंक्शनल इक्वेशन. इसमें हम क्या करने वाले हैं, लेट अस पुट नाउ y is equal to 1 by x. अब देखो इसका रीजन क्या है अभी आपको पता चलेगा. इसको हम 1 कह देते हैं. Now let us put y equal to 1 upon x in 1. क्यों पुट कर रहे हैं, चेक करते हैं. एज ए सेट फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस में बेटा बहुत बार आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है ये देखने के लिए कि क्या वर्क कर रहा है. इज इट ऑल राइट? अब जैसे इसमें अगर हम ये पुट करते हैं तो वी आर गोइंग टू गेट g of x into g of 1 upon x is equal to g of x plus g of 1 upon x, then g of x into y का मतलब हो गया g of 1 और फिर हमें दिया है -2. क्योंकि देखो अगर y 1 by x है तो मतलब x into y की वैल्यू कितनी आएगी 1. अब g of 1 हमने 2 निकाला है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी आर गेटिंग, और वो देखो 2 minus 2 will give you 0. g of 1 is 2, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये 0 आ जाएगा. दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस रिलेशन g of x into g of 1 by x is g of x plus g of 1 upon x. तो ये आ गई हमारी वन अनदर फंक्शनल इक्वेशन. इज इट ओके? अब देखो इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला फंक्शन कौन सा होता है. फंक्शन होता है बेटा g of x is equal to 1 plus minus x raised per n. Is it okay? तो ये फंक्शन होता है where n can be any natural number. अब हमें देखना है कि एक तो प्लस लें या माइनस लें और n क्या आएगा. उसके लिए जो हमने दो वैल्यूज निकाली है बेटा उनकी हेल्प लेंगे. पे एक वैल्यू हमने ये निकाली कि g of 1 is 2 और एक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि g of 2 is equal to 5. अब देखो अगर आप x को 1 पुट करते हो तो g1 विल बी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n मतलब 1. अब क्योंकि g of 1 आपको 2 गिवन है तो ऑब्वियसली प्लस वाला केस लेना है, माइनस वाला नहीं लेना. तो इसका मतलब g of x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस x रेज पर n. तो हमें यह पता चल गया यहां से कि g of x होगा 1 प्लस x रेज पर n. अब n क्या होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे. इज इट ऑल राइट? जस्ट अ मोमेंट. तो उसके लिए बेटा हम ये यूज करेंगे. तो x को 2 पुट करो, g of 2 विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 रेज पर n. इज इट ओके? आपको g of 2 5 दिया है तो 5 को लिख सकते हो 1 प्लस 2 का स्क्वायर. तो दिस इज 1 प्लस 2 रेज पर n. ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, g of 2 is 5 and 5 can be written as 1 plus 2 का स्क्वायर. तो कंपेयर कर लो, n की वैल्यू आ गई 2. इज इट ओके? ये तो अब हम इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, इस फंक्शन में पुट कर दो. दिस इंप्लाइज वी आर गेटिंग g of x टू बी इक्वल टू फंक्शन 1 plus x square. नाउ यू आर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ g of 3. तो हम निकालते हैं g of 3. तो x को क्या पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं. तो वी आर गेटिंग दिस टू बी इक्वल टू 1 प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10. ओके, तो g of 3 की वैल्यू हमारे पास आ गई 10. पुट करते हैं, देखो मतलब कि चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. तो इसमें भी देखो हमारे पास ये वाली जो फंक्शनल इक्वेशन होती है, ऑब्जर्व करो दिस फंक्शनल इक्वेशन, इसको सेटिस्फाई करता हुआ फंक्शन हमारा ये वाला होता है. Is it all right? This is the function which satisfies this functional equation. और फिर जो हमें इंफॉर्मेशन दी है जैसे g of 1 is 2, g of 2 is 5, इसको यूज करके हम देख लेते हैं प्लस ले माइनस ले और n की वैल्यू क्या आएगी. राइट? सो आवर आंसर वाज कमिंग आउट टू बी 10. लेट अस चेक दी ऑप्शंस नाउ. सो यू कैन सी हियर बेटा ए ऑप्शन में 10 आ रहा है.
दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन विल बी ए. गॉट इट? तो ए ऑप्शन हमारी करेक्ट है. So this was question number 6. Now let's move on to the next question. Let's move on to question number 7 now. Now what is given? We are given f is a function from real numbers to real numbers और एक नई फंक्शनल इक्वेशन दी है f of x plus y is fx plus fy for all xy belonging to R. If you are given f of 1 is 7, we have to find sigma f of R varying from 1 to n. तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. अब देखो फंक्शनल इक्वेशन क्या दी है कि f of x plus y is equal to fx plus f of y और एक आपको ये कंडीशन दी है कि f of 1 is equal to 7. अब यूजिंग दीज टू वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द फंक्शन. अब इस वाली फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ फंक्शन हमारे पास होता है fx is equal to lambda x where lambda can be any real number. देखो कैसे, अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लोगे f of x plus y, is it okay? तो this will come out to be lambda times x plus y which is equal to lambda x plus lambda y. तो lambda x तो कितना है देखो f of x, तो lambda y कितना हो गया f of y. तो this is equal to right hand side, isn't it? तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है fx plus fy. तो इसका मतलब रिक्वायर्ड फंक्शन ये है. अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो यूज करते हैं कि f of 1 7 गिवन है. तो नाउ लेट अस पुट x is equal to 1. x को 1 क्यों पुट करें? बिकॉज वी आर गिवन f of 1. All right. So if you put x as 1, we get f of 1 is lambda into 1, that is lambda. So f of 1 is 7. That means 7 is equal to lambda. या lambda की वैल्यू 7 आ गई. तो देखो फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, ये जो फंक्शन था बेटा ये आ गया f of x is equal to 7 times x. This is the required function. So now our function is f of x is equal to 7x and we have to obtain now sigma f of r where r varies from 1 to n बेटा. ठीक है, तो ये हमें सम निकालना है. तो देखो इसका मतलब हो गया वी नीड टू ऑब्टेन सिग्मा आर वेरिंग फ्रॉम 1 टू n. f ऑफ r कितना हो जाएगा 7r, isn't it? क्योंकि f ऑफ x है अगर आपका 7x बेटा, x की जगह r है तो इट विल बी 7r. r इज अ कांस्टेंट विच कैन बी टेकन आउटसाइड द समेशन साइन. तो लेट्स टेक इट कॉमन. तो 7 will come outside the summation. तो sigma r varying from 1 to n. इसका मतलब यही हो गया ना, देखो sum of first n natural numbers r को वेरी करो 1 plus 2 से लेकर n तक. और sum of first n natural numbers you know the direct formula, it is n into n plus 1 by 2. So this is going to be the required answer beta. 7n into n plus 1 by 2. Let us check which option is correct. तो 7n into n plus 1 by 2. तो यहाँ पे देखो करेक्ट ऑप्शन यू कैन सी इज डी ऑप्शन. 7n into n plus 1 by 2. तो यहाँ पे हम कर देंगे डी ऑप्शन को टिक. इज इट ओके? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. एंड बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑलराइट, ताकि आपको पता चलता रहे कि आगे आने वाले MCQs हमारे कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड हैं. ऑलराइट, एंड कीप रिवाइजिंग थ्रू देम. सो अब देखो 8th क्वेश्चन हमारा. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8. लेट अस सी हाउ टू डू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो गिवन क्या है कि f of x plus 2y कॉमा x minus 2y is x into y. और आपको बताना है f of x y किसके इक्वल होगा. तो लेट्स स्टार्ट. तो लेट्स राइट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू अस बेटा. So we are given that f of x plus 2y comma x minus 2y is equal to x into y. अब देखो आपको x into y चाहिए. एक काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो हम यहाँ पे ना कैपिटल X से डिनोट कर लेते हैं x plus 2y को. ये जो पहला वेरिएबल है, क्योंकि देखो हमें निकालना f of x y है. इज ऑल राइट? तो अगर हम ये बोलेंगे कि x plus 2y को x से रिप्लेस करो तो देयर माइट बी सम कंफ्यूजन. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए इसको अभी कैपिटल y x मान लो और y को कैपिटल y.
ऑलराइट, तो यहाँ पे देखो कैपिटल Y कितना हो गया आपका x माइनस 2y। ये अब राइट साइड पे x और y को रिप्लेस करना है स्मॉल वालों को, तो इनसे स्मॉल x स्मॉल y निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ कैपिटल x एंड कैपिटल y। फॉर दैट यू मे एड द टू इक्वेशंस, तो हमारे पास आ गया x प्लस y इज इक्वल टू कितना 2x। दैट मीन्स वी गेट स्मॉल x इज इक्वल टू x प्लस y बाय 2। तो स्मॉल x की वैल्यू हमारी आ गई। अब जैसे आपने इन दोनों को बेटा ऐड किया था, अब हम इन दोनों को कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट। इज इट ऑल राइट? लेट्स सी व्हाट डू वी गेट। वी आर गेटिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग x minus y will be equal to 4y. So that means small y is equal to x minus y and divided by 4. Is it okay? So now we were given that f of x plus 2y comma x minus 2y, this is equal to x into y. यही गिवन था, अब रिप्लेस कर दो। सो आफ्टर रिप्लेसिंग वी आर गेटिंग दैट f of x comma y is equal to, तो कैपिटल x कैपिटल y में लिखना है, तो वी आर गोइंग टू रिप्लेस स्मॉल x एंड स्मॉल y also. So first factor is x plus y by 2, is it okay? And the second factor is x minus y by 8. तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x minus y by 8 बेटा। तो मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी यहाँ पे 4 था नीचे, ठीक है, तो लेट मी राइट इट एज 4. So that means on multiplying what are we getting? We are getting fxy is equal to x square minus y square and divided by 8. ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमें पूछा था। अब देखो एंड में अगर आपने अब कैपिटल x को स्मॉल x से और कैपिटल y को स्मॉल y से रिप्लेस करना है तो हम कर सकते हैं। नाउ देयर विल बी नो कंफ्यूजन। सो दिस इंप्लाइज f ऑफ x कॉमा y will be equal to x square minus y square divided by 8. So this is going to be the answer. Let us check which option is correct. Okay, तो यहाँ पे देखो x square minus y by 8 हमें देखना है, तो you can see that here आपके पास A option will be correct. तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन हो जाएगी हमारी A. Is it okay? तो बहुत सिंपल है, इसको कैपिटल X ले लो, इसको कैपिटल Y ले लो और इनको भी कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म्स में पुट कर दो। Alright? Let's see the next question now. Now let's see question number 9. We are given that, as you can see, find number of solutions. We are given this functional equation which is in terms of fractional part of x and greatest integer function x, right? And we have to find the number of solutions. Alright? अब देखो जब हम ये क्वेश्चन करेंगे ना, what are the concepts of fractional part and greatest integer function that we are going to use? आपको पता है अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है बेटा और n आपके पास कोई भी इंटीजर है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस n इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ऑलराइट। और यही अगर जेंट में होता है x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देन इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x और n इंटीजर हमारा बाहर आ जाता है। एक बात और हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे कि x कैन बी रिटन एज इट्स जेंट और प्लस इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे देखो अगर आपके पास 2.7 है तो एक्चुअल में इट इज सम ऑफ 2 एंड 0.7, इजंट इट? इट इज इक्वल टू 2 प्लस 0.7। तो 2 जो है आपका वो है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट कह लो, और ये है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मीन्स दिस। Is it okay? So every x can be written as gent of x plus fractional part of x. And we also know that किसी भी नंबर का fractional part 0 या 0 से बड़ा होता है and strictly less than 1. So all this information we will require in solving this question. तो देखते हैं हमें इक्वेशन क्या दी है बेटा। सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ। We are given that fractional part of x plus 1 plus 2x is equal to 4 times gent of x plus 1 and minus 6, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी फ्रैक्शनल पार्ट में करते हैं, 1 इंटीजर है तो इट विल बी सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। फिर देखो x को क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये अप्लाई कर दिया हमने। राइट साइड पे चलो, फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, तो इसमें आपके पास जेंट ऑफ x अलग हो जाएगा, 1 कैन बी टेकन आउटसाइड द जेंट एंड वी हैव -6।
लेट अस सॉल्व इट फर्दर नाउ. ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो वी आर गेटिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 2 टाइम्स gent of x प्लस वी हैव 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. राइट साइड पे है 4 टाइम्स gent of x and 4 minus 6 is minus 2. Got it? फ्रैक्शनल पार्ट वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो. सो वी हैव 3 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x is equal to 2 times gent of x minus 2. So that means fractional part of x यहां से आ गया बेटा 2 by 3 times gent of x minus 1. ठीक है, हमारे पास ये कंडीशन आ गई. अब देखो आगे इसको सॉल्व कैसे करना है. अब हमने ये कंडीशन अभी तक यूज नहीं करी है कि किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. सो नाउ इज द टाइम टू यूज दिस कंडीशन. सो वी विल यूज दैट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज लेस देन 1. सो पुट करो, ये हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x देखो इसके इक्वल है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 by 3 टाइम्स gent of x minus 1. All right, this is strictly less than 1. अब एक काम करते हैं, यहां से ये देखते हैं gent of x किस इंटरवल में लाई कर रहा है. तो उसके लिए एक काम तो ये करो, पहले मल्टीप्लाई बाय 3 by 2 so that we are able to get rid of this 2 by 3. So we have 0 less than equal to gent of x minus 1 is less than 3 by 2. Add 1 now. Is it all right? We add 1 in the inequality. So we are getting now further that 1 is less than equal to gent of x is less than 5 by 2. ठीक है, 5 by 2 का मतलब 2.5. अब देखो 1 से लेकर 2.5 में आपको पता है gent of x तो इंटीजर है ना बेटा. कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं? तो gent of x क्या क्या वैल्यूज ले रहा है? आइदर इट विल बी इक्वल टू 1 या फिर ये वैल्यू लेगा 2. Is it okay? अब देखो हम फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे. अगर हमें जेंट पता है तो इसको 1 कह देते हैं यहाँ पे. तो वी आर गोइंग टू पुट इन 1. ठीक है, 1 में पुट करेंगे हम. तो पहले जेंट की वैल्यू 1 पुट करते हैं और फिर जेंट की वैल्यू पुट करेंगे कौन सी? 2. तो लेट अस पुट नाउ. वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, लुक हियर, ये था हमारा 2 by 3 टाइम्स जेंट ऑफ x minus 1. ऑल राइट, ये यूजिंग 1 फ्रॉम 1 कह दो, तो ये हमने 1 से लिखा है. अब देखो अगर आपके पास जेंट ऑफ x 1 है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारे पास हो गया कितना? 1 minus 1 विल बी 0, तो इट इज इक्वल टू 0. तो दिस इंप्लाइज, जैसे मैंने कहा था x होता है उसका इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट. तो इन दिस केस x इज कमिंग आउट टू बी 1 plus 0. That means value of x is equal to 1. तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई. दूसरी वैल्यू लेनी है बेटा, gent of x को पुट करते हैं 2. आप नोटिस करो gent of x की दो वैल्यूज आ रही थी, either it was 1 or it was 2. So if gent of x is 2, fractional part of x will be equal to 2 by 3 into 2 minus 1. That means it is equal to 2 by 3. So that means x will be equal to gent of x plus fractional part of x, which is equal to 2 plus 2 by 3, which is equal to 8 by 3 बेटा. ठीक है ना, ये हो गया. तो इसका मतलब बेटा x दो वैल्यूज ले रहा है. कौन कौन सी? 1 and 8 by 3. So this implies either x is equal to 1 या फिर हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 8 by 3. So these are the two solutions. तो number of solutions कितने हो गए बेटा? 2 solutions. All right. So in this question we have 2 solutions. Got it? तो check करते हैं which option is correct. Let us see. Number of solutions पूछे हैं या solution as such आपको पूछा हुआ है, तो you can see we are supposed to tell number of solutions. तो 2 solutions हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे B option will be correct. Got it? So this was the question. अब एक last question देखो, question number 10. Is it okay? Look at now 10th question. आपको फिर से बताना है number of solutions of this equation where this symbol denotes the modulus function and this symbol denotes greatest integer function. Let's see how to solve this question now. Let us write the equation बेटा. Equation हमें देखो दी है mod x
minus of gent of mod x, this is equal to under root of 1 minus x square. अब देखो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ग्राफिकली. इज इट ऑल राइट? कैसे? पहले देखो लेफ्ट हैंड साइड वाला फंक्शन, ठीक है, ये वाला ले रहे हैं, y इज इक्वल टू मॉड x माइनस जेंट ऑफ मॉड x. तो ये क्या बन गया? दिस इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x. इज इट ओके? तो मॉड x का फ्रैक्शनल पार्ट. क्यों? क्योंकि देखो किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है x माइनस उसका इंटीग्रल पार्ट. तो x के बदले में मॉड x है, तो दैट मीन्स इट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x. तो ये तो है लेफ्ट साइड पे जो फंक्शन था. अब जो राइट साइड पे फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो दोनों के ग्राफ बनाएंगे बेटा, जितने पॉइंट्स पे वो इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. सो लेट्स सी द ग्राफ ऑफ बोथ द फंक्शंस. ऑलराइट, आप देखो यहां पे, let us take this as 0, 1, 2, right, 3. Similarly, we can take minus 1, minus 2, minus 3 and so on. अब देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मॉड x कैसे बनेगा. सबसे पहले हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऑन राइट साइड ऑफ y एक्सिस, मतलब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. आप नोटिस करो यहाँ पे जब आपके पास x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये सिंपली फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आएगा, क्योंकि मॉड x x के इक्वल होता है. और अगर आपका x नेगेटिव है तो मॉड x इज माइनस x, तो ग्राफ बनेगा माइनस ऑफ x के फ्रैक्शनल पार्ट का. तो तरीका ये होता है, अगर इकट्ठा इसका ग्राफ ड्रॉ करना है बिना केसेस लिए, पहले आप y एक्सिस के राइट साइड पे, मतलब जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है बेटा, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ड्रॉ कर लो. यू नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करता है. तो ध्यान से देखना जरा ग्राफ हमारा कैसे आएगा. ऑब्जर्व करो, यहां से ये ग्राफ आएगा, ठीक है, देन द ग्राफ इज लाइक दिस, फिर ग्राफ ऐसे एंड सो ऑन. अब देखो y एक्सिस के लेफ्ट साइड वाला ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, इसी की इमेज लेनी है. अगर हमें ग्राफ इसका चाहिए मॉड x के फ्रैक्शनल पार्ट का, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट इग्नोर करते हैं और इसी की इमेज लेते हैं. तो इसकी इमेज कुछ ऐसे आ जाएगी, देखो, लाइक दिस, एंड देन वी विल हैव लाइक दिस, और फिर इसी तरह से ऐसे. तो ये ग्राफ बना है लेफ्ट हैंड साइड का. अब हम बनाते हैं राइट साइड का ग्राफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का. नोटिस करो यहाँ पे पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, तो मतलब y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. कोई भी पार्ट ग्राफ का बिलो एक्स एक्सिस नहीं होगा क्योंकि y 0 या 0 से बड़ा है. अब आप नोटिस करो, जैसे अगर x को आप 0 लेते हो तो y की वैल्यू 1 है, फिर अगर x को माइनस 1 लेंगे तो y विल बी 0, ठीक है, और 1 लोगे तो भी 0. आप पता है इसको ऐसे देख सकते हो. एक तरीका ये है, जैसे अगर आप इसकी स्क्वेयरिंग कर दो तो यू विल गेट y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 1. आपको पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सर्कल, जिसका सेंटर इज ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल टू 1. पर पूरा सर्कल नहीं बनाना, सेमी सर्कल बनेगा, क्योंकि हमारे पास y जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. तो ये हमने सेमी सर्कल यहाँ पे बना दिया. अब देखो कितने पॉइंट्स पे ये दोनों ग्राफ्स इंटरसेक्ट करते हैं. एक पॉइंट ये हो गया बेटा 1, देन वी हैव 2, देन वी हैव 3 एंड देन वी हैव 4. ठीक है, तो हमने रेड से इंडिकेट कर दिए. तो दैट मीन्स देयर आर 4 सॉल्यूशंस टू दिस इक्वेशन. ओके, तो दोनों तरफ का ग्राफ हमने बनाया, जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है उतने हमारे सॉल्यूशंस. तो लेट अस चेक नाउ बेटा. तो number of solutions as you can see we were supposed to tell, and you can see 4 solutions आए हैं, तो that means D option will be correct बेटा. ठीक है, तो हमारे पास D option correct आ गई. Is it okay? तो इस क्वेश्चन को हमने किया है बेसिकली कैसे? ग्राफ से बेटा, ग्राफिकली हमने. So in this lecture बेटा you have seen
we did questions based on functions. All right, basically we were dealing with questions which involve functional equations. या तो हम उसको mathematically solve करते हैं बेटा, और we solve by using graph. All right, तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस लेक्चर में. Rest we will continue in the next one बेटा. Please keep revising and don't forget to subscribe to the channel so that you keep getting information on the upcoming videos. All right, so I hope you are enjoying the benefit of our courses beta. Thank you and bye-bye.